Hello students. Today we are going to learn the different sources of external recruitment. Means the external sources of recruitment. In the previous lecture we have learned about the internal sources of recruitment. So first go through what is external source of recruitment. When the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि जब हम कैंडिडेट्स यानी कि जो खाली जगह है हमारे यहाँ ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसको भरने के लिए जब अपने एम्प्लॉयज़ को जो एग्जिस्टिंग है उनको ना लेकर के बाहर के एम्प्लॉयज़ बाहर से कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, देन इट इज़ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। When the organization meets its manpower requirement from outside the organization, then it is external recruitment. Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is प्रेफर्ड। हमने पढ़ा था कि इंटरनल रिक्रूटमेंट जनरली जब हम हमारे यहाँ एक दो वैकेंसीज बहुत कम वैकेंसीज होती हैं तब उस केस के लिए हम इंटरनल रिक्रूटमेंट को यूज़ करते हैं। बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स are positions are vacant, then the organization uses the external source of recruitment. So these are the different sources which the different organizations are used to recruit to fill their vacant job position. So these are direct recruitment, casual callers, media advertising, employment exchanges, placement agencies, management consultant, campus recruitment, recommendation, labor contractors, telecasting, web publishing. So these are the different methods through which the organization recruit their employees. So let's go through these sources of external recruitment. So first go through direct recruitment. So the first one is direct recruitment. Sometimes the organization pastes a notice at the gate of their office or factory or workshop stating the vacant job position. The people who are interested in those jobs walk in for interview. This method of external recruitment is most suitable for unskilled job position, sweeper, peon, etc. तो ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंपनी कब यूज़ करती है, जब वहाँ पर उनके पास एक शॉर्ट पीरियड के लिए जॉब जो है वो वैकेंट होती है। और जनरली दिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज यूज फॉर अनस्किल्ड और फॉर कैजुअल लेबर्स। The second one is casual callers or solicitors. Generally, the large organization maintain an application file in which they keep all the pending application which the job seekers leave with the reception. Sometimes the applications of suitable candidates who are not selected in the previous year selection process are also kept in application file. तो casual callers कौन हो गए? यानी कि जिन्होंने लास्ट टाइम जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा था तो उन्होंने उस टाइम जो रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया था बट दे आर नॉट सेलेक्टेड एट दैट टाइम, उनकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग एप्लीकेशंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है, जिनको उन्होंने लास्ट ईयर जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए थे. दिस फाइल इज़ कंसिडर्ड अ वेटिंग लिस्ट. whenever there is a job vacancy the suitable candidate from the waiting list are called. और जैसे जैसे जो है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में खाली जगह होती रहती है जॉब्स में, तो उस जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है, उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होता है उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको कॉल किया जाता है. द नेक्स्ट मेथड इज़ एडवर्टाइजिंग. द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ एडवर्टाइजिंग अबाउट द वैकेंट जॉब पोजीशन. आप देखते हैं कि अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग जो है की जाती है, सो वी कैन इंड्यूस मोर एंड मोर पीपल फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन. द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन. और जब भी
ऑर्गेनाइजेशन जो है एडवर्टाइज़ करती हैं तो किस तरह की जॉब है उसके अकॉर्डिंग वो एडवर्टीज़मेंट का मीडिया यूज़ करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, for the job of an accountant, the advertisement can be given in Chartered Accountant General, and for unskilled and lower rank job position, the advertisement can be given in local or regional newspaper. तो आपने देखा कि according to the job position, the organization use the different advertising media. But for high rank and skilled job position, the advertisement is given in national level reputed newspaper such as Times of India, Hindustan Times, Deccan Chronicle, etc. तो इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग मीडिया भी है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एक पार्ट है, जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब्स दे आर यूजिंग द डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया. सो they are providing the information about the vacant job position, they induce more and more person, so they are applying for vacant job position. The next one is employment exchanges. Government employment exchange act as a middleman between the job seekers and the organizations who have vacant job position. तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं ये एक तरीके से मिडिल मैन का काम करते हैं बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द organization who have the vacant job. The job seekers leave their biodata and details of their qualification with the employment exchanges, and when the organization approach employment exchanges, the suitable candidates are sent. यानी कि जो जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है वो लोग अपना बायोडाटा जो है इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में जमा कर देते हैं, डिटेल्स अपना नोट करा देते हैं, और जो कंपनीज़ जो हैं वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करती हैं, एंड एज़ पर द जॉब्स vacant in their organization they call for the candidates. The next one is placement agencies and management consultants. आपने बहुत से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी होती हैं. दे आर प्रोवाइडिंग अ जॉब टू द जॉब सीकर्स. Placement agencies. Placement companies are the private bodies or professional agencies which provide details of candidate with a desirable profile to their client to fill the vacant job position. They are also play a role of middleman between the job seekers and the organization in which the vacant job position are available. ये लोग जो suitable कैंडिडेट है वो अपनी क्लाइंट को अवेलेबल कराते हैं. क्लाइंट का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस को कैंडिडेट्स की ज़रूरत है. सच एजेंसी मेंटेन डाटाबेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड रिकमेंडेड द सुटेबल कैंडिडेट टू देयर क्लाइंट. और इनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ जो है डाटाबेस होता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एंड ये लोग जो है रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको जॉब की ज़रूरत, जिनको कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है टू फिल देयर वैकेंट जॉब पोजीशन. Management consultant usually specialize in recruiting technical, managerial और professional people at top and middle level. ठीक है, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो कि मैनेजरियल जॉब्स प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं. They may either advertise on behalf of their client or use their data bank to provide the right type of personnel. They are also called the headhunters who may try to get professional from their other companies by offering them better or lucrative offers. और ये लोग अपने क्लाइंट्स के साथ जुड़े होते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा पर्सन उनको प्रोवाइड किया जाए उनकी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिलअप करने के लिए. बोथ प्लेसमेंट एंड एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट चार्ज फीस फॉर देयर सर्विसेज दे प्रोवाइड टू देयर क्लाइंट. और ये जो दोनों ही, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी हो या मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, दे आर चार्जिंग द फीस. ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के बदले उस जॉब सीकर से जो है फीस चार्ज करते हैं, एंड दे ऑल्सो चार्ज द फीस फ्रॉम द क्लाइंट, नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. द नेक्स्ट वन इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट. आपने काफ़ी सुना होगा कि जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में विज़िट करती हैं. दे सेलेक्टेड द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फॉर देयर vacant job positions. Sometimes the senior managers of the organization
visit various professional colleges, technical institute to grasp fresh graduates or the people with the latest technological know-how. तो जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं, जिस तरह की वैकेंट जॉब पोजीशंस होती है, वो लोग अलग अलग कॉलेजेस में या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेने के लिए सर्च करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, विज़िट करते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं और जो है ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, लेटेस्ट नॉलेज हो. This type of recruitment is more common for engineering, computer programs, MBA, etc. The organization prefer fresh graduate because they can be molded according to the requirement of the organization. और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोशिश करती हैं कि ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दिया जाए, बिकॉज उनको अपने तरीके से ढाला जा सकता है. दे आर ईजिली मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़. Many firms encourage their employees to recommend the name of their relatives, friends, and other known people to fill the vacant job position. The organization prefer recommendation by trusting the goodwill of the present employees, and the organization can catch hold of existing employees if there is any problem with the new employee recommended by him. अब इस मेथड में क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको कहा जाता है कि आप अपने रिलेटिव्स या ऐसे पर्सन को आप खाली जगह जो हमारे यहाँ है उसके लिए आप अप्लाई कराइए, आप ऐसे पर्सन को ढूंढ के लाइए, आपके जानकारी में है तो आप उसे बताइए जिसे हम काम पे रख सकें. तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को दो फ़ायदा है. और जनरली रिकमेंड तभी करती है जिस पर्सन की गुडविल अच्छी हो, जिसकी इमेज कंपनी में अच्छी हो, उनको ये चांसेस दिया जाता है. दूसरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ये भी फ़ायदा है कि अगर नया एम्प्लॉयज़ कुछ गड़बड़ी करता है तो जिस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ने उसे रिकमेंड किया था उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है. तो ये एक अनदर मेथड है फॉर रिक्रूटिंग द कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. Jobbers and contractors are the people who keep in touch with the labor in villages and rural areas whenever there is vacancy or requirement of labor in factory or in construction site. They bring the labor from villages and supply to businessmen. अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन हैं? जो कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और वहाँ जो है लोग जो हैं काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलते हैं. कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, कहीं अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, किसी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर की ज़रूरत है तो ये लोग आसानी से जो है लेबर उपलब्ध करा देते हैं. द जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स चार्ज कमीशन फॉर द सेम. और इसके लिए ये उन लोगों से कमीशन भी चार्ज करते हैं. दिस इज़ सुटेबल फॉर लेबरर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर. और ये जो मेथड है ये जनरली अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए यूज़ की जाती है. Labor contractor maintain close contact with laborers and they can provide the required number of unskilled worker at short notice. और ये लोग जनरली जो है लेबरों से क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और जैसे ही ज़रूरत होती है कम से कम समय में ये लोग नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं लेबर्स हैं उनको अवेलेबल करा देते हैं टू द बिजनेस यूनिट्स. नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न. आप इस मेथड को भी आपने देखा होगा, फॉलो होगा कि डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए टेलीविज़न के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास एरिया में इसको पहुंचाया जा सके. A new trend of external recruitment is telecast on various channels regarding vacant job position. They telecast the requirement of the job along with the qualification necessary to अप्लाई. और जो जॉब पोजीशन है, जो खाली पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में जानकारी दी जाती है. उसके लिए किस तरह के पर्सन की ज़रूरत है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है थ्रू द टेलीविज़न. द नेक्स्ट वन इज़ वेब पब्लिशिंग. दिस इज़ द वेरी कॉमन मेथड इन द प्रेजेंट सिनेरियो फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर अ वैकेंट जॉब पोजीशन. In internet, there are certain websites specifically designed provide information regarding job seekers and companies which have vacant job position. आपने देखा होगा कि
इंटरनेट पे बहुत सी अलग अलग तरह की साइट्स हैं, जैसे naukri.com है। तो इस तरह से जो साइट्स हैं वो लोगों तक जानकारी पहुंचाती है कि किस कंपनीज में कितनी वैकेंट जॉब पोजीशन है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस हैं। These websites can be visited by job seekers as well as companies. The common websites are naukri.com, monster.com, etc. So this is another method of publish or provide the information to the job seekers so they can apply for the vacant job position. So these are the different methods for external source of recruitment. You go through these external source of recruitment once again in detail and note down the important points in these external source of recruitment methods.